Hello, Assalamu alaikum friends. I'm Hussein Laghari. We are here for your biology class. Miss Aisha is here and she has to deliver her class. Miss Aisha, can we start now? Sure, sir. Okay, let's start. Okay, thank you. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing good. So today is the first day of the week, and we are going to study the another part of the chapter 2 of class from class second year. So in the previous class we have discussed about support and movement in plants. How do plants move actually, and what kind of movements are found in plants? What is the support system in plants, and all about support and movement, everything. So today we are going to discuss the same thing but about animals or humans. In this class we will study the endoskeleton and the muscular system that are found in us, that uh, due to which with the help of these muscular and skeletal system, we actually locomote from one to another place and we do movement. So without wasting our time, let's just get started. All right. So as I told you that today our first topic that we are going to study is support in animals. And as you know that the one and only uh, thing that actually supports our body is the framework of our body. Uh, that is a skeleton basically. Every animal actually have a skeleton that support and provide a perfect shape to its body. Uh, Rather than there are three different kinds of skeleton found in different kinds of animals. For example, in we humans and in some animals, there is a skeleton found inside the body that which is called endoskeleton, while some animals have an skeleton outside of their body, uh, which is called exoskeleton, and some animals do not have any particular hard structure inside or outside of their body. They have a fluid filled body cavity with muscles. So these animals are actually called they have an hydrostatic skeleton basically, which supports and provide a particular shape to their body. So there are different kinds of skeleton found in different animals, but at the last, I would once again say that the only method or the only thing that actually give the support in animals to locomote or to do anything is the framework of their body, which is called skeleton, and the study of skeleton uh, we do in skeletal system actually. So let's move to the next slide. All right, let us first know what is skeletal system. Basically, the skeletal system is the framework upon which the body is built. It provides support, protection, and enables the animal to move. So basically, as I told you कि जो skeletal system है वो हमारा framework कहलाता है. यानी आपको पता है कि कोई भी चीज हो बेशक लिविंग है नॉन लिविंग है, उसको शेप देने के लिए अ, या मैं इस तरह कहूँ कि कोई भी चीज है आप जिसको देखते हैं वो किसी ना किसी शेप में होती है. फॉर एग्जाम्पल, उसी तरीके से हमें भी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क देने वाला जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है उसको हम स्केलेटन कहते हैं. इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को ना सिर्फ एक शेप देना बल्कि साथ साथ हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन किस तरीके से कि मतलब अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं उन ऑर्गन्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है पूरी बॉडी को. और हमें यानी हम तमाम जो भी एनिमल्स जो लोकोमोशन करते हैं उन्हें मूवमेंट के लिए इनेबल कर रहा है, मतलब मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है. और विदाउट स्केलेटन ना हमारी कोई पर्टिकुलर शेप होती,
ना कोई स्ट्रक्चर होता, ना हम शायद मूवमेंट कर पाते, और शायद नहीं बल्कि एक्चुअली हम मूवमेंट नहीं कर पाते अगर हमारे अंदर स्केलेटन नहीं हो। स्केलेटन एक, यूं समझ लें, छोटी छोटी बोन्स का बना हुआ या बहुत सारी बोन्स का बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और इसके अंदर कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं। जॉइंट्स किसको कहते हैं हम? डिफरेंट बोन्स को, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बात कही कि हमारे स्केलेटन मुख्तलिफ बोन्स से मिलकर बना है। तो मुख्तलिफ बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम अपने हाथ का की एग्जांपल लेते हैं। हमारा हाथ है, हमारा हाथ बीच से एक जॉइंट है हमारे हाथ के अंदर जिससे हम अपना हाथ फोल्ड कर सकते हैं। एक स्ट्रेट हड्डी या एक स्ट्रेट बोन नहीं है पूरे हाथ में कि वो, वरना हमारा हाथ स्ट्रेट रहता। ये जो मूवमेंट है हाथ की, या ये जो दो, यूं समझ लें कि जंक्शन, यानी कि एक जगह है जहां पर दो बोन्स जुड़ रही हैं, इस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं एक्चुअली। और इन जॉइंट से मिलकर हमारा एक पूरा कंप्लीट स्केलेटन बनता है। हमारा जो स्केलेटन है उसको, यानी हमारी जो बोन्स हैं एक्चुअली, स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटन ही बोन्स से मिलकर बना हुआ है। हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस, ये दोनों चीजें इस कनेक्टिव टिश्यूज कहलाती हैं जो कि मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात कहाँ से आई है? सिंपली, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में, यानी हम एनिमल्स में, देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी। एक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि अपर मोस्ट या सरफेस पर पाया जाता है, जो हमारी स्किन में पाया जाता है, या ऑर्गन्स की स्किन, मतलब एक कवरिंग बनाता है किसी चीज की हमारी बॉडी में। या हमारी स्किन की हम बात करें, एपिडर्मल टिश्यू है। एक और टिश्यू है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी एग्जांपल में आते हैं कार्टिलेजेस, बोन्स, एडिपोज टिश्यू जो हमारा फैट स्टोर करते हैं अपने अंदर। और वन थिंग आई एम फॉरगेटिंग, यस, ब्लड। Blood is also a connective tissue that is found in the body. और थर्ड जो हमारा टिश्यू है ये है मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे मसल्स में पाया जाता है। और एक और टिश्यू है हमारी बॉडी में, नर्वस टिश्यू, जो कि न्यूरॉन्स, मतलब ये सारा ब्रेन का जो भी है उससे बना हुआ है। तो हमारे बॉडी के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स और कार्टिलेजेस में क्या फ़र्क है? बोन्स जो है सिंपल है, बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर है, और कार्टिलेजेस जो है वो सॉफ्ट है। मतलब है, कार्टिलेजेस से ही बोन्स बनती हैं। यानी जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उस वक्त उसके अंदर कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं, यानी नरम हड्डियां, जिसको हम नरम हड्डी आप कह सकते हैं, कार्टिलेजेस जो कि फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 जो है ना बोन्स पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है उसकी वो जो नरम हड्डियां हैं, वो जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर में, यानी वो ग्रोथ कर रहा होता है ना एक बच्चा, उस वक्त उसके अंदर जो इस कार्टिलेजेस मौजूद हैं वो फ्यूज होती रहती हैं। फ्यूज मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि वो दोनों ही कार्टिलेजेस नरम है, आपस में फ्यूज करते 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 वो उसके नंबर रिड्यूस होते रहते हैं। और ऐसा पॉइंट आता है कि वो 206 हो जाती है। यानी अब अगर हम अपनी बात करें तो हम तमाम ह्यूमन बींग्स में, हमारे स्केलेटन में 206 यानी 206 बोन्स पाई जा रही हैं। बोन्स के साथ साथ कार्टिलेजेस भी हैं कुछ, पर बोन्स एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे स्केलेटन का बना रही हैं। तो अब कंबाइनली कह सकते हैं कि बोन्स एंड कार्टिलेज मिलके हमारा स्केलेटन बना रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर 3 किस्म के स्केलेटन पाए जाते हैं, हमने पीछे भी बात की। एक हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऑल राइट, सो लेट अस फर्स्ट know what is hydrostatic skeleton. सिंपली ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कोई हार्ड स्केलेटन नहीं हो, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जो कि उसको एक स्ट्रक्चर दे रही हो। जैसे मैंने अभी अभी बात की कि हमें एक स्ट्रक्चर देने के लिए किसी हार्ड चीज की जरूरत होती है, जैसे हमारा स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानदार है जिनके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बोन्स नहीं है, कोई कार्टिलेजेस नहीं है, उनके अंदर खाली बॉडी है, और वो बॉडी फ्लूइड यानी फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड से भरी हुई है। मसल्स तो हैं
पर कोई हार्ड स्ट्रक्चर वाली बोन कार्टिलेजेस कुछ भी नहीं है। तो एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक शेप में है। इस किस्म के स्केलेटन को, जो कि वाटर फिल्ड हो, फ्लूइड फिल्ड हो, इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का भी सेम काम है, ये भी एनिमल को सपोर्ट देता है, साथ साथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम भी करवाता है, ताकि अच्छे से मोबिलिटी हो सके। मोबिलिटी हम किसको कहते हैं? मोबिलिटी हम कहते हैं लोकोमोशन करना किसी जानदार का, किसी एनिमल का। तो मोबिलिटी करवाने में ज़्यादा इजी जो है ना काम ये करवाते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हो कि जो एनिमल्स जिनके अंदर स्केलेटन नहीं है, कोई हार्ड बोन्स या कार्टिलेजेस नहीं है, वो कैसे मूव करते हैं? उनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है और उनके कुछ मसल्स हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक जानदार मूवमेंट या लोकोमोशन करता है। जैसे नाइजीरियंस हो गए, जैसे जेलीफिश हो गई, सी एनिमोन हो गए, और एनिलिड्स में अर्थवर्म आ गए। अर्थवर्म जो है आपने यूजुअली देखा होगा, मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला एक जानदार है। अर्थवर्म की क्या है मतलब स्ट्रक्चर, आपने अगर देखा हो अर्थवर्म का, शायद हमने पहले अर्थवर्म लोकोमोशन में पढ़ा है। अर्थवर्म की एक ऐसी बॉडी है जो कि पार्टीशन में मतलब पार्टीशन हुई है, जिसके दरमियान सेगमेंट्स बने हुए हैं टुकड़े टुकड़े से। वो क्या होता है, सिंपली उसके अंदर भी कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अर्थवर्म नरम है बिल्कुल, अंदर से बिल्कुल नरम, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और उसकी कवरिंग में मसल्स हैं। जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त उसकी बॉडी का जो जब उसकी मतलब फ्लूइड, जब अर्थवर्म को मूव करना होता है ना, तो वो अपनी बॉडी पे प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से उसके अंदर मौजूद जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आम जुबान में बोला जाए तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने फ्लूइड फिल्ड जो प्रेशर आया हुआ उसको रिलैक्स करता है तो उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी के साथ साथ मसल्स दोनों मिलकर एक अर्थवर्म को मूवमेंट करवा रहे होते हैं या लोकोमोशन करवा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जेलीफिश है, जेलीफिश आपने यूजुअली पिक्चर्स में देखी है। जेलीफिश की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी वो भी बिल्कुल नरम है। वो भी सिंपली क्या करती है, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड बॉडी है और उसके अंदर मसल्स हैं। वो प्रेशर लेके और देन जब वो छोड़ती है प्रेशर बहुत जोर से, तो उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके फौरन जब जब वो मतलब प्रेशर रिलीज करती है या वो रिलीव करती है, तो उस वक्त उसका जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जिनके अंदर कोई स्केलेटन नहीं है, सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ है बॉडी में। ऐसे स्केलेटन को हम एक टर्म देते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, another one is exoskeleton. Exoskeleton अगर मैं कहूँ कि एक एक्सोस्केलेटन हम बोन्स को नहीं कहते कि बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है। एक्सोस्केलेटन हम कहते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर या हार्ड आउटर सरफेस पे पाए जाने वाली कोई हार्ड स्ट्रक्चर जो कि जुड़ा हुआ हो इंटरनल मसल्स से। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि हमें सपोर्ट देने के लिए नॉर्मली स्केलेटन की हम बात करें ना, क्या स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है, पर हमें लोकोमोशन करवाने के लिए हमारे स्केलेटन को मसल्स की जरूरत पड़ती है। यानी नेचुरली तौर पे हमारी बॉडी के मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं ताकि कोई भी जानदार इजीली मूवमेंट कर सके। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन आप जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे होंगे, इसको नॉर्मली आई थिंक ग्रास हॉपर कहते हैं इसको। और जो ना नॉर्मली इसके इसके ये इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर कोई हड्डियां नहीं है, कोई कार्टिलेजेस नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर यानी इसकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे हार्ड कवरिंग हुई हुई है। उस हार्ड कवरिंग को ही हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि नॉन लिविंग होता है नॉर्मली। नॉन लिविंग ये एक्सोस्केलेटन कौन बनाता है? एक्टोडर्म बनाते हैं। एक्टोडर्म या ये जो इसके एपिडर्मिस के सेल्स हैं, इसी से ही प्रोड्यूस होता है। इसका सिंपली काम क्या है, ये उस एनिमल को हार्ड स्ट्रक्चर देता है, इजीली मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, और ताकि कोई भी एनिमल इजीली, इंसेक्ट की अगर मैं बात करूं
कि कोई इंसेक्ट इजीली किसी और जानदार का शिकार ना हो जाए, इसीलिए उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जा रही है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं। अब एक्सोस्केलेटन के काफी सारे फायदे भी हैं, जैसे मैं अगर आपको मोलस्कस की एग्जांपल दो, मोलस्कस ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें भी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन ही पाया जाता है, उनके अंदर एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का। तो एक्सोस्केलेटन हर मुख्तलिफ जानदार में अलग चीज से या अलग कंपाउंड से या अलग सब्सटेंस से बना हुआ है, पर काम इसका सेम ही है। एक हार्ड सी कवरिंग है उनकी बॉडी के ऊपर, और आपको अलग ही बकायदा नजर आएगी कि एक्सोस्केलेटन वाले जो जानदार होते हैं ना वो ऊपर से बहुत हार्ड होते हैं। उन मतलब अगर वो कहीं गिरते हैं तो एक आवाज साउंड सी प्रोड्यूस होती है, उससे पता चलता है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर वाला इंसेक्ट है या जानदार है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसके अंदर एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि इससे एक लिमिटाइज हो जाती है इंसेक्ट की जो ग्रोथ है ना, वो लिमिटाइज हो जाती है। लिमिटाइज क्यों हो जाती है? अह, अब्दुल कदीर आप कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम फाइन। अच्छा अब्दुल कदीर, आप मुझसे नोट्स की बात कर रहे हैं, तो नोट्स तो नहीं अवेलेबल। हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आपको हमारे पेज पे मिलेंगे। आप अगर पेज पे देखेंगे, पेज पे सारी स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, और मेरे लेक्चर्स भी सारे के सारे पेज पे अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू हैं या अगर आप शुरू से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। इसके अलावा कोई नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जस्ट ये लेक्चर्स हैं। आपको इसमें कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगी। आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी, या यहाँ पे भी नॉर्मली। बाकी स्लाइड्स आपके सामने हैं, सारी वीडियोस सारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको पेज पे इजीली मौजूद होंगे। जिसमें जो क्वेरी हो आप इजीली पूछ सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। बाकी नोट्स तो नहीं अवेलेबल, नोट्स की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है फिलहाल। ओके तो मैं आपसे ये बता रही थी कि एक्सोस्केलेटन के एक नुकसान ये है कि इससे किसी भी एनिमल की जो वो है ना ग्रोथ, वो लिमिटाइज हो जाती है। लिमिटाइज इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर एक जो एंडोस्केलेटन है, हमारे अंदर पाया जाता है स्केलेटन। तो हम ग्रोथ करते हैं तो हमारे स्केलेटन उस हिसाब से हमारी बोन्स भी ग्रो करनी है। लेकिन जो ऐसे एनिमल्स या ऐसे इंसेक्ट जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग है, तो उनको उनका ग्रो करना मुश्किल है उनकी। तभी आपने देखा होगा इंसेक्ट्स जो हैं वो लिमिटाइज उनका जो है ना यूँ समझ लें कि ग्रोथ होती है, या लिमिटाइज उनका वो होता है। ज्यादा बड़े बड़े इंसेक्ट्स नहीं होते, वो एक लिमिट तक बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ पाते। तो एक ये नुकसान है एक्सोस्केलेटन का कि इससे कोई जानदार इजीली या बिल्कुल फ्रीली ग्रो नहीं कर सकता। ओके नेक्स्ट स्लाइड। Alright, so here we are going to study a very main topic, that is endoskeleton. And endoskeleton में हम पढ़ेंगे हमारा हमारा खुद का human skeleton. So next slide. Alright, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बेसिकली है क्या। देखिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी हम ह्यूमन बींग्स का, वो बना हुआ है बोन्स का, कार्टिलेजेस का, टेंडन्स का, लिगामेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर। यूँ समझ लें लिगामेंट्स वो चीज़ें जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रही है। टेंडन्स की बात करें, टेंडन्स क्या है? टेंडन्स वो टिश्यूज हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। जाहिर बात है अगर हमारी बॉडी, हमारे अंदर हमारा एक एंडोस्केलेटन है, हमारा एक कंप्लीट स्केलेटन पाया जा रहा है, तो यकीनन हमारे साथ मसल्स भी लगे हुए हैं। तो मसल्स को हमारे स्केलेटन के साथ जो जोड़ के रखता है वो ये टेंडेंस होते हैं। कार्टिलेजिस की मैंने आपको बताया कि कार्टिलेजिस हम कहते हैं नरम हड्डी को, यानी होती ये भी बोन ही है, बोन की एक तरीके से टाइप आप कह लो, पर ये सॉफ्ट होती है। इसका जो है ना ऐसे समझ लें कि कंपोजिशन भी इसकी चेंज है बोन्स से। और रही बात बोन्स की, तो बोन्स आपको पता है हार्ड स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी में जो मिलकर एक कंप्लीट स्केलेटन बना रहे हैं। तो ये चार चीजें हमारी मिलकर कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। हमारा पूरी बॉडी का जो वेट है ना, अप्रोक्सीमेटली 20% हमारा
स्केलेटन का वेट होता है, बाकी रिमेनिंग हमारा अपना होता है, तो हमारे स्केलेटन काफी ज्यादा वजन रखता है। इसके अलावा अगर एक अडल्ट की बात की जाए, किसी अडल्ट स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि कोई चिल्ड्रन है उसके अंदर 300 बोन्स पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेजेस होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मतलब बेबी ग्रो कर रहा होता है, उस वक्त उसके जो बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज हो के वो नंबर रिड्यूस होते रहते हैं और फाइनली 206 पर जाकर पहुंचते हैं। 206 से हमारी बोन्स कम नहीं होती, ना इससे ज्यादा होंगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। Okay, here you can see a label diagram of a human skeleton. Let us start from the skull. You can see that सबसे पहले हमारा जो ब्रेन बॉक्स है, जिसको हम कहते हैं हमारा स्कल, पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ये जिसके अंदर हमारा ब्रेन भी प्रोटेक्टेड है, उसको हम स्कल कहते हैं। स्कल के नीचे हमारी जो टीथ की बोन्स हैं, इसको हम कहते हैं बोन्स ऑफ फेस। इसको आप फेशियल बोन्स कहते हैं, जो हमारा फेस बना रही हैं। इसके बाद ये जो हमारी जॉ लाइन है, इसको हम कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल आफ्टर दिस, यहाँ पर हमारी मतलब नेक के जो वर्टिब्राए हैं, क्योंकि हमारी हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली हमारी बैक में पाया जाता है और हमारी नेक से, यानी हमारे नेक से शुरू हो रहा है। तो नेक में पाए जाने वाला जो वर्टिब्राई है, उसको हम सर्विकल वर्टिब्राई कहते हैं। सर्विकल वर्टिब्राई के बाद ये जो हमारी कॉलर बोन्स हैं, यानी हमारी नेक पे हमें बज़ाहिर शो ऑफ भी होती हैं, इसको हम कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल के साथ यहाँ पर स्कैप्यूला एक लगा हुआ है, स्कैप्यूला हम कहते हैं वो ये बोन जो हमारे मतलब आर्म को हमारे शोल्डर के साथ कनेक्ट कर रही है, इसको हम स्कैप्यूला कह रहे हैं। आफ्टर दिस, यहाँ पर ये हमारा हाथ है, जो अपर आर्म है, यानी हमारा जो आर्म है, इसको हम कहते हैं, इसके बोन को हम कहते हैं ह्यूमरस। आर्म के नीचे जो हमारा हाथ है, इसको, इसके अंदर दो जो है ना बोन्स कनेक्टेड है, या दो बोन्स हैं जो कि मिलकर ये हाथ बना रही है, इसको हम कहते हैं रेडियस एज वेल एज अल्ना। अल्ना और रेडियस के नीचे जो हमारी रिस्ट बोन है, इसको हम कहते हैं कार्पल, और कार्पल से निकलने वाली 5 लॉन्ग बोन्स को हम कहते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के आगे अगर आप देखें, ये जो हमारी फिंगर्स की पार्टीशन हुई हुई है, यानी हमारी फिंगर्स में ये जो इनको हम कहते हैं फेलिंजेस। और नेक्स्ट साइड अगर आप देखें, ये जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट साइड पर हमारे रिब्स, यानी जहाँ हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, इसके ऊपर अगर आप देखें एक स्ट्रक्चर यानी बोन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम से पीछे से, यानी बैक वर्टिब्रल कॉलम से घूमकर फ्रंट लाइन पर आकर जो एक आपको पिंजरे जैसा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिब्स। ये हमारी रिब्स हैं, और रिब्स के नीचे ये पूरी हमारी बैक पे वर्टिब्रल कॉलम जा रही है। ये हमारी हिप बोन है, हिप बोन के नीचे यहाँ पर अगर आप देखें, ये सेक्टम है, जहाँ पर आकर फाइनली वर्टिब्रल कॉलम एंड होती है। इसके साइड में जो है पेल्विक गर्डल्स हैं। इसके बाद ये लेग्स है, हमारी लेग्स में भी सिमिलर आर्म जैसा स्ट्रक्चर है। एक लेग जो हमारी थाई लेग है, इसको हम कहते हैं फीमर। इसके नीचे जॉइंट है हमारे, जिसको मतलब यानी ये जो हमारा नी कैप है, इसको हम कहते हैं पेटला। इसके नीचे ओके, इसके नीचे दो बोन्स और हैं, एक को हम कहते हैं फिबिया, एक को हम कहते हैं टिबिया, सॉरी फिब्यूला, और एक को हम कहते हैं टिबिया। और उसके नीचे जैसे हमारे हाथ का स्ट्रक्चर था, एक टार्सल होता है। टार्सल यानी हमारी ये जो इसको मतलब ये जो हमारा जहाँ से हमारा फुट स्टार्ट हो रहा है, इस जॉइंट को हम टार्सल कह रहे हैं। टार्सल से लॉन्ग सीधी 5 स्ट्रेट बोन्स जा रही हैं, इसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के आगे फिर से पार्टीशन हुई है, और इस तरीके से एक कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। हम एक एक पार्ट को, कौन सा पार्ट कैसे डिफ्रेंशिएट है दूसरे पार्ट से, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दें सर। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्केलेटन की ना। हमारे स्केलेटन एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी हमारा स्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक पार्ट को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? स्कल, हमारे हमारे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और ब्रेस्ट बोन।
ये चारों की चारों चीजें, ये सब की सब हमारी एक्सियल स्केलेटन कहलाती हैं। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन हम किसको कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कहते हैं पेक्टोरल पेक्टोरल गर्डल, जिसको हम शोल्डर, यानी जो हमारे बाजू हैं, आर्म है, इसके जो है ना शोल्डर्स को हम कह रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। जबकि और पूरे आर्म्स को भी हम कह रहे हैं, यानी अपर लिम्स को हमारे। और पेल्विस गर्डल हम कहते हैं जो हमारी हिप, जहाँ से मतलब हमारी लेग्स स्टार्ट हो रही है, जो मैंने अभी पीछे हमने बात की, एक बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर था हमारा, जहाँ वर्टिब्रल कॉलम भी एंड होती है आकर, उस जगह को हम कहते हैं पेल्विस गर्डल। और उससे नीचे की तरफ हमारी लोअर लिम्स जा रही हैं। तो यानी आप सिंपली कह लें कि हमारे आर्म्स और हमारी ये जो लेग्स हैं, ये दोनों, ये चारों चीजें हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन है। बाकी रिमेनिंग स्केलेटन हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर डोमिनेटली आप यहाँ पर इन्होंने जो है ना प्रोमिनेंट किया हुआ है कलर देकर, कि आप अगर ये सेंट्रल वाले डायग्राम को देख रहे हैं, तो इसमें ये जो फ्रोजी यानी लाइट ब्लू से कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये हमारा एक्चुअली एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जिसके अंदर हमारी स्कल है, रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, और हमारी ब्रेस्ट बोन है। ये सारी चीजें, यानी ये स्ट्रक्चर जो है, जो लाइट ब्लू कलर में, ये एक्सिल है। बाकी जो हाईलाइट हुआ हुआ है रेड में, ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसके अंदर ये हमारी शोल्डर्स एज वेल एज हमारी आर्म आ रही हैं। नीचे अगर आप देखें पेल्विस गर्डल, यानी हमारी जहाँ पर हिप्स हैं, हिप्स बोन्स इसको आप कह सकते हो, ये इसको हम कहते हैं पेल्विस गर्डल। और पेल्विस गर्डल से नीचे की तरफ हमारी लोअर लिम्स जा रही हैं। तो ये हाथ और पाँव, ये दोनों हमारा पेंडिकुलर है, जबकि वो वाला एक्सियल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन की। देखें, हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो कंप्लीटली 80 बोन्स का बना हुआ है। इन 80 बोन्स से हमारा जो है ना एक कंप्लीट वर्टिकल एक्सिस बनता है बॉडी का। जैसे हमारे हेड की बोन्स हो गई, नेक की बोन्स हो गई, चेस्ट की बोन्स हो गई, स्पाइन की बोन्स हो गई, ये सारी, यानी हमारे कंप्लीट एक्सियल स्केलेटन मिलकर 80 बोन्स का बना हुआ है। सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। स्कल हमारा बना हुआ है टोटल 22 बोन्स से, और इन बोन्स को आप दो लोकेशन के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोन्स को आप कह सकते हैं क्रेनियल बोन्स, ये हम अपने पूरे यानी फेस की, पूरे फेस को हम स्कल कह रहे हैं, इस पूरे फेस के बोन्स का हम स्कल कह रहे हैं, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, क्रेनियल और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स हम कहते हैं वो बोन्स जो हमारा स्कल, बिल्कुल स्कल बनाती हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद है, उसको हम स्कल कहते हैं। वो कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है? 8 बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसका काम ये है कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जबकि फेशियल बोन्स की अगर मैं बात करूं, फेशियल बोन्स हमारी यानी फेस की बोन्स को कहते हैं, जो कि 14 यानी 1/4 14 फेशियल बोन से मिलकर हमारा बाकी का रिमेनिंग पार्ट बना है स्कल का। इसका काम क्या है? ये हमारा फेस बनाता है कंप्लीट। तो स्कल और फेस, या सॉरी, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स दोनों मिलकर एक कंप्लीट स्कल बना रही हैं। हमारा स्कल 22 बोन्स का है, और हमारा जो स्कल है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 बोन्स का बना हुआ है। 26 बोन्स में से सबसे जो ऊपर है वो 24 जो है वो हमारी वर्टिब्राई है। बाकी उसके नीचे पाई जा रही हैं सेक्रम और कोकेक्स, यानी हमारी टेल बोन्स। हम बात करते हैं इसकी, देखते हैं। सबसे पहले हम जो वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, जिसको हमने कहा कि ये 24 बोन्स का बना हुआ है, 26 बोन्स का बना हुआ है। दो बोन्स को अगर किसी वजह से निकाल दें, क्योंकि उसको हम अलग टर्म देंगे ना, उसको निकाल के अगर देखा जाए तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम 24 बोन्स की या 24 हिस्सों में डिवाइडेड है, 24 बोन्स की बनी हुई है। इन 24 वर्टिब्राई को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहली वाली हिस्से को हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्राई, सेकंड को हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्राई, और थर्ड को हम कहते हैं लंबर वर्टिब्राई।
सर्विकल वर्टिब्राई हम कहते हैं नेक की बोन्स को, यानी वो 7 बोन्स जो हमारे हेड और नेक में पाई जा रही हैं वर्टिब्राई, उनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्राई। यहाँ डायग्राम पे भी आप अगर गौर करते रहे साथ साथ तो आपको और मजीद क्लियर होता रहेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जो रेड कलर के अंदर बोन्स मौजूद हैं हमारे हेड से शुरू होकर हमारे नेक तक, इसको हम सर्विकल बोन्स कहते हैं। ये 7 वर्टिब्राई की मतलब 7 उसकी बनी हुई है। थोरेसिक वर्टिब्राई हम कहते हैं जो अपर बैक की बनी हुई है। अपर बैक मतलब फौरन से सर्विकल के नीचे जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहा है, ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्राई है जो 12 बोन्स से मिलकर बनी हुई है। उसके नीचे जो येलो कलर के अंदर प्रोमिनेंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं लंबर वर्टिब्राई, जो कि हमारी लोअर बैक बनाता है। लोअर बैक यानी जहां से हम मतलब जो बिल्कुल हमारा एंड है बैक का, ये 5 बोन्स का मिलकर बना हुआ है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पर इन 3 हिस्सों के अलावा नीचे एक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर आप देखो। इस ग्रीन कलर के जहां हमारा वर्टिब्रल कॉलम फाइनली जाके एंड हो रहा है, इसको हम टेल बोन कहते हैं। इसमें आप यूं कह सकते हैं कि ये बना हुआ है सेक्रम से, और बिल्कुल एंड पॉइंट को हम कहते हैं कोकेक्स। सेक्रम और कोकेक्स मिलकर एक टेल बोन बनाती हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल ही एंड पर पाई जा रही है, जिसके साइड्स से हमारे जो है ना फाइनली लेग्स स्टार्ट हो रही हैं। तो ये कंप्लीट वर्टिब्राई भी हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थोरेसिक केज की। थोरेसिक केज हम किसको कहते हैं, देखें। थोरेसिक केज हम कहते हैं जो कि रिब्स का बना हो और स्टार्नम का। लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज स्टार्नम। स्टार्नम हम कहते हैं ये जो आपको फ्रंट पे बोन नजर आ रही है, जिससे हमारी अगर आप सामने देखें, इस दो आपके सामने डायग्राम्स शो हो रही हैं। एक हमारी बैक है, एक हमारा फ्रंट है। फ्रंट की मैं बात कर रही हूँ। फ्रंट पे आप सेंट्रल पार्ट में एक बोन देखेंगे जिससे रिब्स आकर कनेक्ट हो रही हैं। इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इससे आकर कनेक्ट होने वाली जो बोन्स हैं उनको हम रिब्स कहते हैं। और रिब्स हमारे अंदर कितनी पेयर में पाई जाती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, और एक हमारे दरमियान लगी हुई है स्टर्नम। ये दोनों मिलकर हमारा थोरेसिक केज बनाती हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे मतलब जो हार्ट है, लंग्स है, यानी यहाँ पाए जाने वाले हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें अगर आप बज़ाहिर देखिए तो कुछ वर्टिब्राए डायरेक्टली आकर स्टर्नम के साथ कनेक्टेड हुई हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब उसके साथ कनेक्टेड नहीं हुई हुई वर्टिब्राए से। अगर आप इस तरफ वाली डायग्राम देखें जिसमें ये हमारा स्केलेटन उल्टा है, यानी हमारी बैक शो हो रही है, इस पर आप बैक पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 ऐसे रिब्स हैं, यानी ये जो पेयर में 2 हैं वैसे 4 है ऐसे रिब्स हैं जो कि लटकी हुई हैं, यानी लगी हुई हैं, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं हो रही। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बाकी तमाम रिब्स जाकर फाइनली एस्ट्रानम के साथ कनेक्टेड है। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर, रिब्स में भी फ्लोटिंग रिब्स आती हैं और कनेक्टेड वाली भी आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, उसके बाद हम अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कहते हैं कितनी बोन्स का बना हुआ है। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे ज्यादा बोन्स का बना हुआ है एज कम्पेयर टू एक्सियल स्केलेटन। ये हमारा 126 बोन्स का बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है बज़ाहिर लेबल डायग्राम से कि किस फेस पार्ट को हम एक्सियल स्केलेटन कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जहाँ हमारे शोल्डर्स स्टार्ट होने, इस शोल्डर्स और आर्म और ये जो नीचे लेग्स पूरी जा रही हैं जो कि पेल्विस गर्डल यानी हिप बोन के साथ जुड़ी हुई हैं, इन दोनों यानी हमारे हाथ और पाँवों का आप अपेंडिकुलर स्केलेटन कह सकते हैं। यह अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है। एक्सियल स्केलेटन हमने अभी अभी पीछे पढ़ा कि किसको कहते हैं, उसके साथ ही हमारा जुड़ा हुआ है। अगर आप लेबल डायग्राम में देख रहे हैं तो क्लेविकल हम सिंपली कह रहे हैं इस बोन को, जो कि जो है कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं, जो हमारे नेक के बिल्कुल डोमेन सामने पाई जा रही है। और उसके नीचे स्कैप्यूला मौजूद है। स्कैप्यूला हम उस जॉइंट को कह रहे हैं जो कि आर्म मतलब जुड़ा हुआ है रिब्स से, और नीचे आर्म लेके जा रहा है पूरा। आर्म की फर्स्ट बोन को हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके नीचे पाई जाने वाली 2 बोन्स को हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। उसके नीचे कार्पल है, यानी हमारी जो रिस्ट है इसको कार्पल कह रहे हैं। फिर मेटा कार्पल, जो हमने पीछे ऑलरेडी ये चीज हम देखकर आ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल हम किसको कहते हैं? देखिए, पेक्टोरल गर्डल हम कहते हैं वो जगह जहां पर हमारा आर्म यानी बाजू पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ। इस जगह को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पेक्टोरल गर्डल के अंदर दो बोन्स आती हैं। एक तो कॉलर बोन आ रही है। कॉलर बोन मैंने अभी आपको बताया हमारे नेक के सामने जो मौजूद होती है, इसको हम कॉलर बोन कह रहे हैं। कॉलर बोन के साथ साथ स्कैप्यूला। स्कैप्यूला हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड को, यानी ये जो शोल्डर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम स्कैप्यूला कह रहे हैं। स्कैप्यूला और कॉलर बोन यानी क्लेविकल दोनों मिलकर हमारा पेक्टोरल गर्डल बना रही है। पेक्टोरल गर्डल से जुड़ी हुई है आर्म, यानी एक पेक्टोरल गर्डल से एक आर्म जुड़ी हुई है। हम आर्म्स को अपने लिम्स कहते हैं। और क्योंकि हमारी लिम्स चार हैं, दो पैरों को कहते हैं लेग्स को, दो हमारे हाथों को, तो हाथों वाले जो लिम्स हैं इनको हम अपर लिम्स कहते हैं। हम अपने अपर लिम्स की बात करें, हमारे अपर लिम्स 30 बोन्स के बने हुए हैं। यानी हमारी एक आर्म, मैं अपने हमारे एक आर्म की बात कर रही हूँ, वो 30 बोन्स से मिलकर बनी हुई है। उन 30 बोन्स में कौन सी बोन्स आती हैं? ह्यूमरस आता है। ह्यूमरस से एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, सबसे फर्स्ट बोन, उसके नीचे जुड़ी हुई हैं दो बोन्स। एक को हम कहते हैं रेडियस, एक को हम कहते हैं अल्ना। अल्ना और रेडियस के बाद कार्पल मौजूद है। कार्पल जो कि 8 बोन्स का मिलकर बना हुआ एक रिस्ट एरिया है। रिस्ट हम कहते हैं इसको, यानी ये जो हमारी मूवमेंट करती है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम अपनी रिस्ट कहते हैं। ये हमारा कार्पल है। कार्पल से 5 स्ट्रक्चर में जा रही हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के अंदर पार्टीशन हुई हुई है। पार्टीशन होके जो छोटी छोटी, यानी ये फिंगर्स में पार्टीशन हुई है, इसको हम फेलेंजेस कहते हैं। ये सारा मिलकर हमारा एक आर्म बनाते हैं, और हमारा एक आर्म 30 बोन्स का मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से हमारी दूसरी आर्म होगी, और दोनों आर्म्स और पेक्टोरल गर्डल मिलकर हमारे अपर लिम्स कंप्लीट बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, द अनदर वन इज पेल्विस गर्डल। पेल्विस गर्डल को हम हिप बोन्स कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लेग्स जुड़ी हुई हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन से। और हमारी जो एक्सियल स्केलेटन यानी कि ये पेल्विस गर्डल किसका बना हुआ है? पेल्विस गर्डल बना हुआ है हिप बोन्स का और लेग्स का। अब हिप बोन्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ देख लिया कि हमारे पेल्विस गर्डल को, यानी उन दो बोन्स को जो हमारे जुड़ी हुई हैं, जहां वर्टिब्रल कॉलम एंड हो रही है ना, वहां पे दो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कह रहे हैं हिप बोन्स या पेल्विस गर्डल। उसके साथ जुड़ी हुई जो लेग्स हैं, लेग्स को हम लोअर लिम्स कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने अपर लिम्स की बात की, उस तरीके से हम लोअर लिम्स की बात करते हैं। हर एक लेग हमारी, हर एक मतलब दो बोन्स, दो लेग्स हैं हमारे अंदर, तो एक लेग हमारी 30 बोन्स की बनी हुई है। लेग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, सेम एज इट इज वही है जो हमने पीछे पढ़ा। एक फीमर बोन है जो लार्जर बोन है, यानी लार्ज बोन है पूरे लेग की। उसके नीचे दो जो है ना लोअर लेग में पाई जाने वाली दो बोन्स हैं, एक को हम कहते हैं टिबिया, एक को हम कहते हैं फिब्यूला। दोनों के नीचे नी कैप, यानी ये जो हमारा नी कैप है, जो ज्वाइंट है लेग थाइस और लेग के दरमियान, इसको हम कहते हैं पेटिला। पेटिला के नीचे टार्सल्स पाया जा रहा है। टार्सल्स हमारा एंकिल यानी एड़ी जो है हमारी, इस ये बनाता है। इस टार्सल जो है ना, वो 7 बोन्स का मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी एड़ी या एंकल बनाता है। इस एंकल में से निकलने वाली 5 लॉन्ग बोन्स जा रही हैं फुट जो हमारा बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में भी पार्टीशंस हुई हुई हैं। पार्टीशंस होकर टोज यानी हमारी पाँव की उंगलियां भी बन रही हैं, जिसको हम कहते हैं फेलेंजेस। तो ये सारी बोन्स मिलकर कंप्लीट 30 बोन्स कंप्लीट करती हैं, और 30 बोन्स मिलकर एक लेग बनाती हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारी एक एक आर्म में और एक एक लेग्स में 30 डिफरेंट 30 बोन्स पाई जानी है, इसलिए हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो ज्यादा बोन्स का बना हुआ है एज कम्पेयर टू एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, यहाँ पर सेम वही चीज है। पेल्विस आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेल्विस हम किसको कह रहे हैं और हिप बोन हम किसको कह रहे हैं? पेल्विस और हिप बोन से हमारी लेग्स जुड़ी हुई हैं। अगर हम पैरों की यानी हमारे लोअर लेग फुट की अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फुट में फिबिया है, टेब्यूला है, देन एंकल बोन है। एंकल बोन के नीचे हमारी मेटाटार्सल, फेरेंजिस,
टेलस, कैल्सिनियस, ये सारी चीजें। कैल्सिनियस हम कहते हैं ये जो हमारे एंकल के साइड में थोड़ी थोड़ी आउटग्रोथ सी हुई है बोन की, उसको हम कहते हैं कैल्सिनियस। तो ये सारी हमारी लोअर लिम्स बना रही है, लोअर लिम्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम की। अभी अभी हमने स्केलेटन सिस्टम की बात की, तो अब फंक्शंस की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे स्केलेटन हमें क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या चीजें काम कर रहा है हमारे लिए, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि हमारा स्केलेटन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज स्टोर और रिलीज करता है फैट को। इसके अलावा हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे ब्लड सेल्स भी बनाता है, जैसे हमने बात की थी शायद के ब्लड बोन्स। ये जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारे जो है ना बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हम कहते हैं बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट चीज पाई जा रही होती है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं। उसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्केलेटन है ये स्टोर करता है, रिलीज करता है मिनरल्स को, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, सपोर्ट देता है बॉडी को, लोकोमोशन करवाता है, और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस करवा रहा है, पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, अब बात करते हैं जॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जॉइंट्स हमने बात की जैसे पहले भी कि जॉइंट्स हम उस प्लेस को कह रहे हैं जहां पर दो बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं। अब जॉइंट्स के अंदर भी जो है ना दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो लिगामेंट्स और एक टेंडेंस। हमने पीछे भी बात की। लिगामेंट्स हम किसको कह रहे हैं? लिगामेंट्स हम कहते हैं, लिगामेंट्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ना, और ताकि बोन्स जो है ना डिस्प्लेस ना हो जाए। डिस्प्लेस होने की वजह से हमारी बोन्स हम मतलब इमूवेबल हो जाएंगे, तो इसलिए बोन्स आपस में एक प्रॉपर तरीके से साथ रहें, इसीलिए ये जो है ना जॉइंट को मूव नहीं होने देता लिगामेंट। टेंडन की बात करें, टेंडेंस क्या है? टेंडेंस वो टिश्यूज हैं जो कि बोन को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। और जॉइंट्स की जहां तक बात रही, जॉइंट्स दो किस्म के हो सकते हैं, मूवेबल जॉइंट्स भी हो सकते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं तो हम पहले अपना जो है ना कुछ जॉइंट्स, यहाँ पर आप लेबल डायग्राम में अगर देख रहे हैं, हमारी बॉडी में तीन किस्म के जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। कुछ इमूवेबल हैं, कुछ मूवेबल हैं, कुछ लिटिल मूवेबल हैं। सबसे पहले हम इमूवेबल की बात कर रहे हैं, तो वो जॉइंट हमारे कहलाते हैं फिब्रिस, जो कि हमारे स्कल की में पाए जाते हैं। स्कल के जॉइंट बोन्स को जोड़ तो रहे हैं लेकिन मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और जॉइंट है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस, जो कि थोड़े बहुत मूवमेंट करवाने में काम करते हैं। कुछ ऐसे जॉइंट है जिनको हम कहते हैं साइनोवियल, जो कि कम्प्लीटली मूवेबल है, बिल्कुल मूवमेंट करवाता है। जैसे हमारे जो है नी कैप हो गया, हमारा एल्बो का जॉइंट हो गया, ये चीजें हमारी, ये हमारे ऐसे जॉइंट है जो मूवेबल है। अगर राइट इस तरफ आप देखें तो एक लेबल डायग्राम है, यहाँ पर जो रेड कलर में डोमिनेट किया गया है, ये दिखाया गया है कि ये जगह हमारे जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर शोल्डर में पाया जाने वाला जॉइंट हमारा कहलाता है एक्ट्रोमायोक्लेविक्युलर। इसके बाद शोल्डर्स है हमारे, उसके बाद रिस्ट है, हिप्स हैं, नी है, फुट है, एंकल है। ये सारे हमारे जॉइंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एक कंप्लीट मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी बॉडी के 5 मेन एंड बेसिक जॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेचुअर जॉइंट की, जिसको हम इंटरलॉकिंग जॉइंट कहते हैं। दूसरा जॉइंट है पाइवट जॉइंट, उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके बाद है हिंज जॉइंट, उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये 5 ऐसे जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं। कौन सा कैसा है, क्या काम कर रहा है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। सेचुअर जॉइंट की अगर हम बात करें, इंटरलॉकिंग जिसको हम कहते हैं, ये वाले जॉइंट बिल्कुल इमूवेबल नहीं है, बिल्कुल भी मूव नहीं करते। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का वर्ड आपने पहली बार इस स्लाइड में सुना है। क्रेनियम हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को, यानी हम अपने स्कल की बात कर रहे हैं। स्कल के अंदर पाए जाने वाला ये जॉइंट है जो बिल्कुल इमूवेबल है। दूसरे जॉइंट की बात करें, पाइवट जॉइंट, ये मूवेबल है।
कहाँ पाया जाता है? ये क्रेनियम से नेक में पाया जाता है। नेक में तभी हम अपनी नेक को इधर और इधर मूव कर सकते हैं। ये पाइवट जॉइंट हमारी नेक को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। तभी हम राइट और लेफ्ट साइड पूरा अच्छे से अपनी नेक को घुमा सकते हैं। रही बात बाल एंड सर्किट जॉइंट की, बाल एंड सर्किट जॉइंट वो जॉइंट है जो मूवेबल है, जो हमारे शोल्डर्स में और हिप्स में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी लेग्स को मूव करते हैं। हमारे शोल्डर्स भी मूव हो सकते हैं, हमारी लेग्स भी मूव हो सकती हैं। हिंज जॉइंट भी बिल्कुल मूवेबल है। ये हमारे एल्बो और नी में पाया जाता है। एल्बो हमारा जो है हाथों के दरमियान पाया जाने वाला जॉइंट, नी हमारा लेग्स के दरमियान पाया जाने वाला जॉइंट। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये भी मूवेबल है। ये कहाँ पाया जाता है? एंकल में, रिब्स में और वर्टिब्राई में। एंकल की जहां तक बात करें, आपने कभी ऑब्जर्व किया हम अपने पाँव इजीली मूव कर सकते हैं थोड़े बहुत, या हमारी एंकल जो मूवमेंट कर रही है ये इसी जॉइंट की वजह से कर रही है। रही बात रिब्स की और वर्टिब्राई की, ये कैसे मूवमेंट करते हैं? रिब्स और वर्टिब्राई मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सामने देख रही हूँ और पीछे से आपको कोई नेम कॉल कर रहा है, आप उसको मुड़ के देखते हैं, तो आप थोड़ा बहुत अपनी जो वर्टिब्राई है या रिब्स है ना उसको मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये इस जॉइंट्स की वजह से हो रही है, जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। तो ये 5 जॉइंट ऐसे हैं जिनमें कुछ मूवेबल है और कहाँ पाए जा रहे हैं, कुछ इमूवेबल है। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट में सिंपली आता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सर्किट जॉइंट। पाइवट जॉइंट हमारी नेक में पाया जाता है, जो हमारी नेक को राइट और लेफ्ट साइड मूव कराने में हेल्प करता है। शोल्डर्स में हमारा पाया जाता है बॉल एंड सर्किट जॉइंट, जो कि हमारे शोल्डर्स को एक हम अपने शोल्डर्स को राउंडली भी घुमा सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी एल्बो में पाया जाता है हिंग जॉइंट, जो हमारे हाथों को एक बेंड करके नीचे रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे रिस्ट में, यानी हमारे जो कलाई है, रिस्ट है, इसमें पाया जाता है एक ये हिंज जॉइंट, जो कि जो है ना एलिप्सॉइडल जॉइंट, जो कि हाथों को राइट साइड लेफ्ट साइड हम अपने हाथों को बिल्कुल कंप्लीटली मूव कर रहे हैं, ये इसी इसी जॉइंट की वजह से कर रहे हैं। उसके बाद हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट हमारे लेग्स, मतलब ये जो हमारी लेग्स बिल्कुल ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जॉइंट है जो हमारे हिप्स से जुड़ा हुआ है। रही बात नी की, नी हमारा जो है बिल्कुल लेग्स के दरमियान पाया जाने वाला जॉइंट है, जो कि हमारी ये लेग्स में इजिली एक तरीके से मैं यूं कहूँ कि वो मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये 5 अलग अलग मुख्तलिफ जगह पर पाए जाने वाले जॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, अब रही बात मस्कुलर सिस्टम की, तो मस्कुलर सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जो कि एक कंप्लीट मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। हमने अपना सपोर्ट सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम अपनी लोकोमोशन की बात करते हैं। हम किस तरीके से लोकोमोशन कर रहे हैं या क्या है क्या नहीं है। लेट अस जस्ट स्टार्टेड लेट अस गेट स्टार्टेड। So please move to the next slide. All right, thank you. Let us first talk about what are muscles. Muscles are the कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ एक जो है ना मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले। हमारी कंप्लीटली बॉडी मसल्स की बनी हुई है। सर से लेकर पैर के टोस तक हमारी पूरी बॉडी कवर्ड हुई हुई है मसल्स से। मसल्स के अंदर हमारा स्केलेटन है। मसल्स को स्केलेटन से जोड़ने वाली चीज को हम टेंडन्स कहते हैं। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 600 मसल्स हैं जो मिलकर कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। और जिस तरीके से हम स्केलेटन को स्केलेटल सिस्टम कह रहे हैं, उसी तरीके से मसल्स को हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, मसल्स किसके बने हुए हैं? मसल्स बने हुए हैं मसल्स फाइबर्स के, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखें, ये टेंडन जो कि कनेक्टेड कर रहा है बोन्स को उससे। टेंडन्स के नीचे मसल्स वैली है। मसल्स वैली के अंदर आप अगर देखें, ये जो गोल स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं, इनको अगर और बाहर बाहर निकालें, इसको हम वैसे कहते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम को हम अगर इनमें से अगर एक स्ट्रक्चर बाहर निकालें, ये जो ये फेस्किक्यूलस है, फेस्किक्यूलस के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फाइबर्स। मजीद फाइबर्स को बाहर निकालेंगे अगर और स्ट्रक्चर, तो हमें सार्कोलेमा नजर आता है। सार्कोलेमा हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोमर्स। सार्कोलेमा सार्कोप्लाज्म है। सार्कोलेमा के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड है। उसके नीचे उसके अंदर पाए जाने वाले मायोफिब्रिल्स हैं।
तो ये एक लॉन्ग से स्ट्रक्चर आगे की तरफ जा रहा है कि जो कंप्लीट मिलकर एक हमारा एक मसल बनाता है। और हमारे अंदर इस तरीके की 600 मसल्स हैं जो कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, मसल्स हमारी क्या प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी देती हैं, यानी इरिटेबिलिटी, मतलब कोई भी स्टिमुलस हो हमारी बॉडी का, जैसे नर्व इम्पल्स की अगर हम बात करें, हम किसी चीज को टच कर लें, कोई चीज हमें टच कर ले, कोई भी रैंडम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को जो देता है ना, यानी मूवमेंट करके, वो हमारे मसल्स करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हम कहते हैं जब हमारे मसल्स फाइबर्स स्टिमुलेटेड होते हैं। स्टिमुलेटेड मतलब जैसे ही हमें कोई चेंज हमारी बॉडी में आता है या बॉडी से बाहर आता है, तो हमारे मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो छोटे और थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअली मूवमेंट करते हैं। हम मूवमेंट ही तब करते हैं जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक अच्छी जो है ना पावर है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हम कहते हैं हमारे मसल्स हमारी बॉडी की जो ओरिजिनल शेप है उसमें हमें रिटर्न कर देता है। मतलब अगर हम अपने मसल्स को या हम अपनी बॉडी को बेंड भी कर लें ना, मोड़ भी लें, या किसी तरीके से भी, जैसे योगा करते वक्त हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा बेंड करते हैं, उस वक्त हमारी ये मसल्स स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। लेकिन उसको छोड़ देने के बाद हमारी जो मसल्स हैं वो बैक टू द नॉर्मल स्टेट आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर इलास्टिसिटी की भी एक बड़ी जो है ना क्वालिटी मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक तो कार्डियक मसल्स हैं, एक स्केलेटल मसल्स हैं, एक स्मूथ मसल्स है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स हम उनको कहते हैं वो मसल्स जो हमारे दिल यानी हार्ट की वॉल्स बनाए। ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेट हो पूरी बॉडी में। ये इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल के बगैर काम करते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। हमारे हार्ट की वॉल्स जो हैं वो हमारे अपनी मर्जी से यानी इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है, हमारी मर्जी से नहीं कर रही, हमारी थॉट्स से नहीं करनी। तो ऐसी चीज जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हो, जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है मसल्स, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि हमारे हार्ट के मसल्स हैं, जो कि जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्डियक मसल्स के बाद है हमारे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम विसरल भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स वो मसल्स है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, हमारी आईज में, यानी हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, उसके अंदर हार्ट को छोड़ के सिर्फ जो है ना सब के सब के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा एक कंप्लीट सिस्टम चलता है। ये भी इनवॉलेंट्री है, यानी दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारी मर्जी से ये काम नहीं करते, अपनी मर्जी से या अपने मूवमेंट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, स्केलेटल मसल्स कौन से हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने कार्डियक मसल्स पढ़ा, कार्डियक मसल्स बोन से नहीं जुड़ा हुआ। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाए जा रहे हैं। रही बात स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स हमारे तमाम ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, यानी अब तक तो कोई ऐसा मसल नहीं है जो हमारी बोन्स के साथ जुड़ा हुआ हो। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो है हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। और एक नई बात ये है कि ये वॉलेंट्री भी है। वॉलेंट्री मतलब कि दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द पर्सन, यानी हम हमारे कंट्रोल में है, हम इससे अपनी मर्जी से एक्शन करवा सकते हैं। स्केलेटल मसल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए तमाम मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। नाउ लेट अस टॉक व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स एक तो हमारी कंप्लीट मतलब हमें वॉलेंट्री मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, ऐसी मूवमेंट जो हमारी मर्जी से हो।
हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, मसल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारा एक बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी बहुत सारे स्केलेटल मसल्स के हमारे जो है ना फायदे हैं, जो हमें स्पेशल सबसे पहला और मेन फायदा यही है कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद हम टेंडेंस की बात करें, यानी मेथड ऑफ अटैचमेंट टू बोन्स। मसल्स का बोन्स के साथ अटैच होना किसके जरिए होता है? टेंडेंस के जरिए। टेंडेंस क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये जो मसल्स बोन्स के साथ जिस तरीके से अटैच हुए हैं, इस मसल्स को, यानी ये जो हमारी हील्स के साथ लेग्स की कनेक्टेड हैं, ये थ्रो कनेक्टेड हैं टेंडेंस के जरिए। इस टेंडेंस को हम कहते हैं आर्टिकुलस टेंडन, जो कि हमारे लेग्स के जो मसल्स हैं उनको जो है ना हमारे उसके साथ हील्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं। तो टेंडन इज बेसिकली द अटैचमेंट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एक और दो टर्म्स यूज होती हैं, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन हम किसको कहते हैं? देखिए, जब एक मसल अटैच हुआ है बोन के साथ, तो यकीनन उसके दो पॉइंट होंगे जहां से वो अटैच हुआ है। एक पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, एक पॉइंट को हम कहते हैं इंसर्शन। ओरिजिन मसल्स का वो पॉइंट है जिससे वो बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, उस जगह जो जो मूवेबल नहीं है। जैसे आप यहाँ पर अगर डायग्राम में देख रहे हैं, एक एक वाला जो पॉइंट है उसको हम ओरिजिन से मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो मूव नहीं करता, जबकि इंसर्शन वो पॉइंट है मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मसल्स हमेशा जब कनेक्टेड होते हैं तो दो पॉइंट्स होते हैं, एक ओरिजिन एक इंसर्शन। ओरिजिन वो पॉइंट है जो मूव नहीं करता, और इंसर्शन वो पॉइंट है जो मूवेबल है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। मूवमेंट ऑफ मसल्स की बात करें, हमारे मसल्स दो किस्म से मूवमेंट करते हैं, अडक्शन और एबडक्शन। अडक्शन हम किसको कहते हैं? अडक्शन हम कहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को टुवर्ड्स द मिड लाइन मूव करना। टुवर्ड्स द मिड लाइन मतलब अगर हम अपने हाथों को ऊपर लेके गए हैं और बैक टू द हम अपने स्ट्रेट अपने बॉडी की तरफ उन हाथों को लेकर आएंगे, तो उसको हम अडक्शन कहेंगे। एबडक्शन हम कहते हैं मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन, मतलब अपनी बॉडी से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को अवे मूव करना, मतलब अपोजिटली मूव करना, उसको हम एबडक्शन कहेंगे, और टुवर्ड्स बैक मूव करना उसको हम अडक्शन कहते हैं। दो किस्म के मूवमेंट है मसल्स की, एबडक्शन अडक्शन। जब भी हम अपने हाथ को मतलब मिड लाइन की तरफ लेकर आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे अडक्शन। मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे एबडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद दो टर्म्स और हैं आई थिंक, दैट इज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन हम कहते हैं दो बोन्स के दरमियान हम अपना एंगल इंक्रीज करना है, या आप इस तरह कह लो कि बेंडिंग अ बॉडी पार्ट। जब हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बेंड करेंगे, उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। यस, यू कैन आस्क। और एक्सटेंशन हम मैं कहेंगे आ, मैम जब हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेट करेंगे, यानी बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन कहलाएगा, और दोबारा स्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी पार्ट को, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट उसमें मूवमेंट में आप हेल्प देख रहे हैं, फिंगर्स की भी मूवमेंट है, हैंड्स की भी है, लेग्स की भी है, आर्म्स की भी है। यस, ओके, हियर वी हैव अ क्वेश्चन। मैम जो स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट है ये कौन सी होती है, ये किस में होती है? ओके, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हम इस तरीके की जो है ना अपने इसकी मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं। हमारे जैसे आर्म्स की बात हो गई, हमारे लेग्स की बात हो गई, वैसे स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मसल्स की ही मूवमेंट पढ़ रहे हैं। मसल्स में मूवमेंट जो मेन पाई जा रही है वो एडक्शन और एबडक्शन है। जो एक्चुअल टर्म्स यूज होती हैं वो एडक्शन और एबडक्शन यूज होती हैं। अगर हम अपने मसल्स को टुवर्ड्स बॉडी लेकर आ रहे हैं तो वो क्या टर्म है, और अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रहे हैं तो क्या टर्म है। और नॉट इवन मसल्स, अगर हम अपने हाथों के किसी भी पार्ट को बेंड कर रहे हैं देन स्ट्रेट कर रहे हैं, उस टर्म को एक्चुअली क्या कहा जाता है। पर स्लाइडिंग जॉइंट्स और ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, ये हमारे जॉइंट्स में काउंट होते हैं एक्चुअली। जो हमारे जैसे
हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं वो हमारे जो में पाए जा रहे हैं, हमारी एंकल्स में पाए जा रहे हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स में, शोल्डर्स में पाए जा रहे हैं। तो ये जॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट हमारे यहाँ पर जो टर्म्स में अभी इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल टर्म्स है मूवमेंट की। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। All right. The another two movement of the muscles is rotation or circumduction. Rotation is हम कहते हैं turning a body part around its own axis, यानी हम अपने own axis, अपने body के own axis में अपने own जैसे हम अपने head को turn करें side to side, यानी हम अपनी body को अपने ही axis के इर्द गिर्द move करें, वो rotation है। अगर हम अपने body के किसी joint को rotation में यानी सर्कुलर मोशन में मूव करें, जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम अपने आर्म को एक सर्कल में स्विंग कर रहे हैं, इस किस्म की मूवमेंट को हम सर्कमडक्शन कहते हैं। और अगर हम अपने ही बॉडी को अपने एक्सिस में रोटेटली मूव करें, उसको हम रोटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम बात करते हैं मसल स्टोन्स की। मसल स्टोन्स हम कहते हैं सिंपली आपको पता है कि हमारे मसल्स नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हर वक्त, हमारे मसल्स हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं, तभी हम इजीली मूवमेंट कर पाते हैं नॉर्मली। अगर हम अपने मसल्स को यूज नहीं भी करें तो भी वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं। तो ये जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है ना हमारे मसल्स की, यानी हर वक्त मसल्स का एक पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन में रहना, इसको हम मसल टोन कहते हैं। और मसल टोन एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमारे मसल्स किसी भी मूवमेंट को करवाने के लिए रेडी रहते हैं, यानी हर वक्त थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे ताकि हम रैंडमली मूवमेंट करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, अगर मसल स्टोन हमारी लॉस हो जाए तो क्या होता है? मसल स्टोन स्पेशली लॉस कर देते हैं जब कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज हम किस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे मसल्स बहुत टाइम से, मतलब हमारे मसल्स अगर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज ना हो, ठीक है, तो वो वेस्ट हो जाते हैं, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाता है। हम नॉर्मली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट करते हैं। जब एक इंसान फॉर एग्जांपल पैरालाइज हो जाता है, उसके मसल्स लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए जब यूजेज में नहीं आते, तो उसके मसल स्टोन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, टाइटनिंग खत्म हो जाती है मसल्स की, जो है ना जॉइंट्स जो है वो बेंड हो जाते हैं। और नॉर्मली तौर पे एक फिंगर्स स्ट्रक्चर, नीज, ये सब के सब ऐसे जॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं जब कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज सिंपली हम कह सकते हैं लॉस ऑफ मसल स्टोन, जिसमें हमारे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना खत्म कर दें। और मसल टोन हमने पीछे जो कंडीशन पढ़ी वो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे मसल्स हर वक्त रेडी रहे फॉर द मूवमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल मसल्स की बात करें, हमने पहले भी बात की, हमारे जो मसल्स हैं वो मसल सेल्स के बने हुए हैं। मसल जो है ना ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व फाइबर्स के बने हुए हैं। इसके अंदर मसल सेल्स पाया जाता है जिसको कहते हैं फेस्टिकल, जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिमाइजियम कहते हैं। इसके अंदर एक मसल फाइबर्स मजीद पाए जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको हम एंडोमाइजियम कहते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर जो बेसिक यूनिट है मसल्स का उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। इन तमाम चीजों से मिलकर एक कंप्लीट मसल्स का स्ट्रक्चर बनता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स में जो मेन यूनिट है वो सार्कोमियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडन। टेंडन के बाद एक मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम एपिमाइजियम कह रहे हैं। एपिमाइजियम के अंदर स्ट्रक्चर वाइज आप छोटे छोटे बहुत सारे पेरिमाइजियम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। पेरिमाइजियम में से एक पेरिमाइजियम को अगर बाहर निकालें तो उसके अंदर एक फेस्टिकल है और उसके अंदर बहुत सारे उसमें से भी बहुत सारे मसल फाइबर्स लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए हैं। मसल फाइबर्स को और मजीद बाहर निकालें तो उसके अंदर उसके ऊपर वाली कवरिंग को हम सार्कोलेमा कह रहे हैं। सार्कोलेमा के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं। इन मायोफिब्रिल्स को अगर बाहर निकालें, इसमें मजीद सार्कोमियर्स स्ट्रक्चर, छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद हैं। तो एक मसल्स बहुत सारी चीजें से बन रहा है, लेकिन जो बेसिक यूनिट है मसल्स का उसको हम सार्कोमियर का नाम देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। Alright, so it was all about the structure, the skeletal system and muscular system and the humans.
Today we have discussed the support and movement in animals. In the next class, we will study about the coordination and control in humans or in all animals. So, if you have any query or any confusion, you can comment down your questions. I will answer them. We will, inshallah, come back with another lecture tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.